हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लर्निंग विद रोश चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ एवन रोश चौहान मैथ्स लर्निंग एंड आई एम रोशनी चौहान, एमएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई एम हियर टू clear your all maths concept in these videos. Please like, share and subscribe the channel. आप मेरे चैनल पर जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज कंटिन्यूसली बना रहेगा और आपको समझने का सीक्वेंस भी बना रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. You can clear your all types of a maths concept and also the physics concept in here, and also the upper classes and upper maths of upper classes. This is my contact number. You can contact me. Thank you for your love and support and thanks for me. Continue watching. आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट. So you can listen and clear your concept of the physics. Hello my dear friends, I am Roshni Chauhan and this is my channel Math Learning with Rosh Chauhan. और आज मैं लेके आई हूँ फिजिक्स क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. So let's we introduce this chapter. Electricity has a important place in modern society. आप जानते हैं मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी से कई सारे काम भी किए जाते हैं. ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूज इन होम, स्कूल, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन. Now, next topic of this chapter is electric current and circuit. The air current and water current. The two types of current, air current and water current. A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. A switch makes a conducting link between the cell and bulb. Next, a continuous and closed path. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. जो continuous और closed path होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in a unit time. What is electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. Okay, next is electric current is the rate of flow of charges. आप इलेक्ट्रिक करंट की सेकंड डेफिनेशन शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो. इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. Electric current was considered to be the flow of positive charges. Electric current was considered to be a flow of positive charges. Positive charges के flow को हम क्या कर सकते हैं? Electric current कह सकते हैं. Direction of flow of positive charges was taken to be direction of electric current. The direction of flow of positive charges, जो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होगी, दैट इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव. द नेक्स्ट पॉइंट इज I is equals to Q upon T. What is I here? Q is net charge, T is time and I is current. So current is equal to charge upon time. SI unit of electric charge is coulomb. यानी Q की जो SI unit होगी that is called coulomb and it is denoted by the capital C. Charge of an electrons. एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होता है? So 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1 coulomb has 6 into 10 to the power 18 electrons. एक coulomb में 6 into 10 to the power 18 electrons पाए जाते हैं. Next, electric current is expressed by a unit called ampere. अगर इलेक्ट्रिक करंट को एक यूनिट यानी
किसी एक में एक्सप्रेस किया जाए, एक यूनिट में मेज़र करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे एम्पियर, और डिनोट होता है ये कैपिटल ए से। वी कैन राइट इट 1A इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम upon 1 second. Some the smallest unit of the current is here MA. MA means milliampere. 1 MA is equals to 10 to the power minus 3 ampere. 1 mu A is equals to 10 to the power minus 6 ampere. The next point is an instrument. An instrument called ammeter मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कहते हैं एमीटर। एमीटर से आप इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम, इट इज़ अ डायग्राम ऑफ मेड ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एन एमीटर एंड अ प्लग की। And you make this diagram, you can look at here, okay. So it is a plug key, and it is ammeter, it is bulb, and it is a cell. This is a negative charge, this is positive, and ammeter also has a negative and positive. Okay, the direction of current is the upward to the bulb. Let's numerical depend on these. So if I is equals to 0.5 ampere means electric current is 0.5 ampere. T for time is 10 minutes. Then find charge यानी Q. So Q is we know that Q is equals to IT, right? Q is equals to IT means that हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था I is equals to Q upon T. Okay. सो यहाँ से हम Q का फार्मूला इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो वी गेट दैट Q इज इक्वल्स टू IT. सो I यानी एम्पियर 0.5 एंड दिस इज 600, दिस इज 10 मिनट. और टाइम की जो मेजरमेंट होती है वो सेकंड में होती है. सो 10 मिनट में हमारे पास हो जाएंगे 600 सेकंड. ओके. सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600 वी गेट दैट 300 कूलम चार्ज. द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल difference. First we study about the analogy of flow of water. जैसे हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं कि वाटर क्या होता है, अपवर्ड से डाउन की तरफ होता है, और अगर आपको डाउन से अपवर्ड वाटर लेके जाना होता है तो आपको मोटर के यूज़ करना पड़ता है. सेम दैट इट इज़ द एनालॉजी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिसिटी. सो चार्जेस डू नॉट फ्लो अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ. चार्जर कभी भी किसी भी कॉपर वायर में अपने आप फ्लो नहीं होते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. इलेक्ट्रॉन्स मूव तभी करेंगे जब उन बीच किस चीज़ का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर का, जिसे हम कहते हैं कॉल द पोटेंशियल डिफरेंस. जिस चार्ज का जितना पोटेंशियल होगा वो उसी तरफ ही मूव करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बाय अ बैटरी. किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको प्रोड्यूस करना है, बढ़ाना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बैटरी का यूज़ कर सकते हैं. द केमिकल एक्शन विथ एन सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस. जो केमिकल एक्शन होता है वो ही क्या करता है, किसी सेल के अंदर जनरेट कर सकता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस. आपने देखा है सेल में जो चार्जेस होते हैं वो केमिकल एक्शन की वजह से ही आते हैं. The electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to other. The electric potential difference between 2 points. 2 पॉइंट्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सर्किट के अंदर, वो कैरी करते हैं कुछ करंट. कैसे, एज अ वर्क डन, उनके वर्क डन के बराबर, टू मूव अ यूनिट चार्ज. एक चार्ज में या एक कूलम में वो कितना मूव कर रहे हैं वो उनका वर्क डन हो जाता है. सो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज.
The SI unit of the electric potential charge, electric potential difference is volt and it is denoted by the capital V. पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट को भी हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं. ओके. द नेक्स्ट इज 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of the work is done to move a charge of 1 coulomb from the one point to another. उसे हम 1 volt कहेंगे जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल का काम कर रहा हो, किसमें, 1 कूलाम में. 1 कूलाम में वो जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे 1 जूल वर्क डन जो उसका हो रहा है उसे हम कहेंगे वोल्ट. यानी V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. आपने अभी अभी यहाँ पे देखा V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. अकॉर्डिंग टू यूनिट 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulomb. So 1 V is equals to 1 joule per coulomb. Okay. The potential difference is measured by the means of an instrument. Potential difference को measure करने वाला, किसको, potential difference को measure करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर. The voltmeter is always connected up in parallel across. ये voltmeter हमेशा parallel across में ही connected होगा. The point between which the potential difference is to be measured. आपको जहाँ पर भी potential difference find करना है वहाँ पर ये parallel में ही connected किया जाएगा. Okay. The voltmeter is always connected in parallel. The next is the circuit diagram. सर्किट डायग्राम में आपके पास कुछ डायग्राम होते हैं जिनको आपको पहचानना ज़रूरी है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज बैटरी. आप देख सकते हैं इस तरह से 2 पॉइंट होते हैं और एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, जहाँ यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज. इसे आप इलेक्ट्रिक सेल, आपके डायग्राम में ये जो फिगर है ये डायग्राम में सेल डिनोट करेगा. ओके. इट इज़ अ सेल. नेक्स्ट इज प्लग की. अगर आपके पास कोई की है और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इट इज़ कॉल्ड अ ओपन प्लग की. एंड अगर यहाँ पर आपके बीच में एक डॉट आपके पास बना दिया गया हो, इसे हम कह सकते हैं क्लोज प्लग की. थर्ड इज इलेक्ट्रिक बल्ब. इस तरह का जो डिज़ाइन आपकी सर्किट में बनाया जाएगा दैट इज डिनोटेड बल्ब. रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस इज आर and it is denoted by this, the zigzag line, this and this and this. Fifth, ammeter. Ammeter is like a circle. इसके अंदर आपको A लिखा होगा और इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड नेगेटिव एंड लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज. इट इज़ कॉल्ड एमीटर. एंड वोल्ट मीटर में भी कुछ इसी तरह का डायग्राम है, लेकिन इसके सेंटर में क्या लिखा होगा, V. तो ये कुछ डायग्राम है जो आपके सर्किट में बने होंगे और जिन्हें आप पहचान सकते हो कि ये क्या है. पॉइंट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ, V अपॉन I इज अ कांस्टेंट रेशियो. इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास VI ग्राफ है. द एक्स एक्सिस इज I यानी करंट एंड वाई एक्सिस इज V यानी पोटेंशियल डिफरेंस. एंड इसे V से यानी वोल्ट से ही इसकी यूनिट है, I की यूनिट है एम्पियर. और आप देख सकते हैं कि ये लाइन क्या है, एकदम इक्वल. अगर आपका I इंक्रीज़ हो रहा है तो V भी इंक्रीज़ हो रहा है. जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा ये भी इंक्रीज़ होगा. और जब इस तरह से दोनों तरह का इंक्रीमेंट एक साथ होता है, इक्वल होता है, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. इट मीन्स ओम्स लॉ में भी V अपॉन I इज़ अ कांस्टेंट रेशियो. द पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. हम देख रहे हैं कि ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मीन्स V को इंक्रीज़ किया जा रहा है तो I भी इंक्रीज़ हो रही है, V को इंक्रीज़ किया जा रहा है तो I भी इंक्रीज़ हो रही है. और इस कंडीशन में ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. सो वी कैन राइट इट V प्रोपोर्शनल टू द I. सो I आपके पास लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इट इज़ V अपॉन I इज इक्वल्स टू R. ये जो रेशियो इसे हम R कहते हैं जो कि हमारे पास कांस्टेंट होता है. ओके. एंड अगेन वी कैन राइट इट V इज इक्वल्स टू IR. And V is equal to IR is also called a Ohm's. The next point is Ohm's law. Ohm's law, V upon I is a constant ratio.
इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास वी आई ग्राफ है। द एक्स एक्सिस इज आई यानी करंट एंड वाई एक्सिस इज वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इसे वी से यानी वोल्ट से ही इसकी यूनिट है, आई की यूनिट है एम्पियर। और आप देख सकते हैं कि ये लाइन क्या है, एकदम इक्वल। अगर आपका आई इंक्रीज हो रहा है तो वी भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा। और जब इस तरह से दोनों तरह का इंक्रीमेंट एक साथ होता है, इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। इट मीन्स ओम्स लॉ में भी वी अपॉन आई इज अ कांस्टेंट रेशियो। द पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हम देख रहे हैं कि ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स V को इंक्रीज किया जा रहा है तो I भी इंक्रीज हो रही है, V को इंक्रीज किया जा रहा है तो I भी इंक्रीज हो रही है। और इस कंडीशन में ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। सो वी कैन राइट इट V प्रोपोर्शनल टू द I। सो I आपके पास लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इट इज़ V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। ये जो रेशियो इसे हम R कहते हैं, जो कि हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है। ओके, and again we can write it V is equals to IR, and V is equal to IR is also called a Ohm's law. The SI unit of resistance is ohm. Okay, so 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere. Next topic is factors of on which the resistance of a conductor depend. वो कौन से फैक्टर है जिस पे आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। So the first point is the emitter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is double. अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे तो आपका एमीटर क्या करेगा, 1/2 रीडिंग करेगा। ओके, नेक्स्ट एमीटर रीडिंग इंक्रीज्ड। अगर एमीटर क्या कर रहा है, इंक्रीज्ड बता रहा है व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ। अगर आपने सेम मटेरियल और सेम लेंथ की थिकर वायर ली है तो आपका जो एमीटर होगा वो इंक्रीज्ड हो जाएगा। अ चार्ज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वायर ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल of the same length and the same area of a cross section is used. अगर आपने क्या किया, सेम एरिया और सेम लेंथ का मटेरियल यूज़ किया, सेम एरिया सेम लेंथ का क्रॉस सेक्शन यूज़ किया, लेकिन मटेरियल क्या है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, आपके एमीटर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है ओनली 3 थिंग्स में। सो ऑन इट्स लेंथ, सबसे पहले तो लेंथ पे डिपेंड होता है, ऑन इट्स एरिया of a cross section and on its nature of material. Okay, length, area and nature. We can write it R is proportional to L क्योंकि length पे depend है, directly proportional, and R proportional to L upon A और area पे depend है। Okay, next, rho is a constant for the proportionality and it is called the electric resistivity of the material of the conductor. रो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, जो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होती है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, एंड इट इज़ अ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है, इट इज़ ओम मीटर। द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेटल्स एंड एलॉय। द मेटल्स एंड एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। किसी मैटर और एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही लो होती है। इन द रेंज ऑफ, जो रेंज होती है उसकी वो होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। ओके, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिसकी भी, क्योंकि मैटर्स और एलॉय क्या है, एलॉय आपका मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन। सो दीज आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स दैट कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी कंडक्टर्स होंगे उनकी रेंज 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर लाइक अ रबर ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 to the 10⁻17
ओम मीटर। इनकी रेंज होती है 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक। नाउ टंगस्टन, यू ऑलरेडी लिसन दिस वर्ड। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने एक पतली सी वायर देखी होगी जिसमें लाइट होती है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड ये होता है टंगस्टन से बना हुआ। वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जबकि आपने ये जो दो मेटल सुन रहे हो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, आर जनरली यूज फॉर द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। जो वायर बनती है उनके लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, जबकि बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। विद दिस, थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग मी। वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज़ A1 रॉश चौहान मैथ्स लर्निंग, एंड दिस इज़ माय चैनल मैथ्स लर्निंग विद रॉश चौहान। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जितना हो सके इसे शेयर कर लीजिए ताकि उन बच्चों को वो नॉलेज मिल सके जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। ओके, एंड द maths of upper classes also are available from 9 to 12 BSc and Polytechnic. You can take tuitions from me, and this is my contact number. You can contact me. Thank you for watching and continuously watching. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।